زیادہ تر ڈاکٹر ریمیکولوجسٹ اور آٹو امیون اسپیشلسٹ خوراک اور اینا پازیٹیو لیوپس کے انتظام کے درمیان تعلق پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس ویڈیو میں اینا پازیٹیو آٹو امیون بیماری کے انتظام کے لیے سب سے مؤثر غذائی حکمت عملیاں ایک آنتوں کے مائکرو بائیوم کے ماہر اور سرجن کے نقطہ نظر سے بیان کروں گا۔ گزشتہ دہائی کے دوران میں نے لیوپس کے مریضوں کے ساتھ قریبی کام کیا ہے اور جو بصورتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے زندگی بدل دینے والی ثابت ہوئی ہے۔ اگر آپ کا کوئی جانے والا لیوپس سے جدوجہد کر رہا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہ معلومات آپ کی زندگی میں نمایاں فرق لا سکتی ہیں۔ ہیلو، میں ڈاکٹر چانو دسری ہوں، ایک سرجن جو آنتوں کی صحت پر توجہ دے کر دائمی سوزش کی جڑ کو حل کرنے کے لیے وقف ہے۔ میرا طریقہ، جسے مائنڈ گٹامون اپروچ کہا جاتا ہے، 12 سالوں میں لیوپس جیسی آٹو امیون بیماریوں پر قابو پانے میں مریضوں کی مدد کرتے ہوئے تیار ہوا ہے۔ آنتوں کے مائکرو بائیوم کے توازن پر توجہ دے کر ہم نے بے شمار افراد کو ان کی علامات پر دوبارہ قابو پانے میں مدد کی ہے، بغیر اس کے کہ وہ ادویات پر زیادہ انحصار کریں۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ لیوپس کو آنتوں کی صحت کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو نتائج اکثر حیران کن ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقہ کار کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور حقیقی مریضوں کی کامیابی کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو نیچے دی گئی تفصیل میں موجود لنک دیکھیں۔ کام پر جا کر میرے ساتھ ایک ڈسکوری کال شیڈول کریں۔ میں آپ کو وہ عملی اقدامات بتاؤں گا جو آپ کو اپنی صحت بہتر بنانے کے لیے کرنے ہوں گے۔ آپ کو اضافی وسائل بھی ملیں گے، جیسے مریضوں کی آرا اور مزید مواد جو آپ کی منفرد صورتحال کے مطابق قیمتی بصیرت فراہم کر سکتا ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک 2023 کی تحقیق ہے جو غذائی عوامل کے ایپیجینیٹک تبدیلیوں کی ترتیب پر اثرات کا جائزہ لیتی ہے جو SLE کے مریضوں پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ 2022 کی تحقیق ہے جس میں لیوپس کے مریضوں میں آنتوں کے مائکرو باؤٹا میں ہونے والی تبدیلیوں کا صحت مند خاندان کے افراد سے موازنہ کیا گیا اور مائکرو بائیوم ڈائٹ اور لیوپس کی علامات کے درمیان تعلق کو دیکھا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم لیوپس کو کنٹرول کرنے کے لیے مثالی غذا پر بات کریں گے، چاہے آپ روزانہ کی علامات سے نبرد آزما ہوں یا فلیئر اپ سے بچنے کے طریقے تلاش کر رہے ہوں۔ لیوپس کے لیے بہترین خوراک کا انتخاب کرنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ ادویات پر زیادہ انحصار کرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ سالوں کے دوران میں نے بے شمار مریضوں کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں نے غذائیت اور آنتوں کی صحت پر توجہ دے کر اپنی لیوپس کی علامات اور مجموعی مواد زندگی میں نمایاں بہتری دیکھی ہے۔ لیکن آخر اس طریقہ کار کو اتنا مؤثر بناتا کیا ہے؟ زیادہ تر ماہرین آپ کو بتائیں گے کہ لیوپس ایک دائمی بیماری ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اور صرف ادویات ہی اس کا حل ہیں۔ تاہم کلینکل تجربے اور ابھرتی ہوئی تحقیق کی بنیاد پر یہ واضح ہے کہ روایتی طریقہ اکثر اہم عوامل کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں لیوپس کے لیے بہترین غذا، عام غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں اور یہ کہ آپ اپنی صحت کی بحالی پر کیسے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، سب کچھ واضح کروں گا۔ اچھا، یہاں پہلا اہم نقطہ ہے فائٹو نیوٹرینٹس کی اہمیت۔ متعدد مطالعات اس بات کو اجاگر کرتی ہیں کہ فائٹو نیوٹرینٹس لیوپس کے انتظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک 2019 کی تحقیق ہے جس میں کرکومن اور قدرتی پولی فینول مرکب کے اثرات اور یہ کہ یہ لیوپس کی علامات کو کس طرح کم کرتا ہے بیان کیا گیا ہے۔ یہ 2015 کی تحقیق خوراک، آنتوں کے مائکرو بائیوم اور لیوپس کے درمیان تعلق کو دریافت کرتی ہے، جس میں خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ فائبر اور پولی فینول جیسے مخصوص غذائی اجزاء لیوپس کے مریضوں میں آنتوں کے بیکٹیریا کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ اور یہ 2022 کی تحقیق پروبائیوٹکس کے کردار کا جائزہ لیتی ہے کہ وہ آنتوں کے مائکرو بائیوم کو کیسے تبدیل کرتے ہیں اور لیوپس کے علاج میں ان کے ممکنہ فائدے کیا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ فائٹو نیوٹرینٹس سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے اہم ہیں، خاص طور پر خود کار امراض جیسے لیوپس میں۔ اس حوالے سے کافی تحقیق موجود ہے، لیکن آئیے سیدھی بات کرتے ہیں اور اصل اہمیت کی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ فائٹو نیوٹرینٹس وہ قدرتی مرکبات ہیں جو پودوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں اور مسالے۔ آپ انہیں اینٹی آکسیڈنٹس، فلیوونوڈز، سپر فوڈز جیسے ناموں سے بھی جان سکتے ہیں۔ یہ مرکبات سوزش کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو لیوپس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جتنا زیادہ آپ کی خوراک ان چیزوں سے بھرپور ہوگی، اتنا ہی آپ کا جسم بیماری کے بھڑکنے سے بہتر طور پر لڑ سکے گا۔ فائٹو نیوٹرینٹس کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے ترپینز، فینولز، کلوروفل اور پری بائیوٹکس، اور ہر ایک آپ کے جسم کو توازن میں رکھنے کے لیے منفرد فائدے فراہم کرتا ہے۔ لیوپس کے بہت سے مریض ان اہم غذائی اجزاء کی کمی کا شکار ہوتے ہیں جس سے آپ کے معدے، مدافعتی نظام اور مجموعی صحت کے درمیان نازک تعلق متاثر ہو سکتا ہے۔ اکثر یہیں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے۔ لیوپس کے مریض کے لیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں ان غذائی اجزاء کی مقدار اور اقسام کو زیادہ سے زیادہ کرے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے جسم کو وہ اوزار فراہم کرتے ہیں جن کی اسے سوزش کو قابو میں رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ اگر آپ کی خوراک میں فائٹو نیوٹرینٹس کی کمی ہے تو لیوپس کو کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ان مرکبات سے بھرپور غذا علامات کو کم کرنے اور ادویات کی مقدار گھٹانے میں نمایاں فرق ڈال سکتی ہے۔ میں پرزور مشورہ دیتا ہوں کہ ہر کھانے میں جتنے زیادہ فائٹو نیوٹرینٹس شامل کیے جا سکیں ضرور کریں۔
हर खाने को इस मौके के तौर पर देखें कि आप अपने जहन को ग़िज़ाइयत दें, अपने मैदे को सेहतमंद बनाएं और अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करें। और अगर आप ये मौक़े गंवा देते हैं तो आप खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। असल बात यह है कि फाटोन्यूट्रिएंट्स ल्यूपस को संभालने में आपके बेहतरीन साथी हैं। इसका मतलब यह है कि आप स्टेरॉइड्स, मिथोट्रेक्सिट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी अद्वियात छोड़ सकते हैं। अगर आपकी खुराक में ये अज्जा शामिल नहीं है तो हैरत की बात नहीं कि आपको अब भी वो अलामात दरपेश है जिनके लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी खुराक रज़ाइयत से भरपूर है तो आप अपने जिस्म को सोजिश पर काबू पाने और अपनी हालत को बेहतर रखने का बेहतर मौका दे रहे हैं। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि ल्यूपस के मरीजों के लिए मखसूस ग़िज़ाई ज़रूरियात और मीक्रो काउंटिंग का ख्याल रखना ज़रूरी है। गुज़िश्ता चंद सालों में वक्फे से रोज़ा रखने, इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत मकबूलियत हासिल हुई है और बहुत से लोग उसके सोजिश कम करने वाले असरात के दावे करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने आया हूं कि ल्यूपस जैसी बीमारियों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वो मौजज़ा नहीं है जिसे पेश किया जाता है, बल्कि हकीकत में ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एक हालिया 2024 की तहकीक में यहाँ तक पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से दिल की बीमारी से मौत का खतरा 91% तक बढ़ गया। सिर्फ खाना छोड़ने की इतनी भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खतरात के बावजूद बहुत से लोग, जिनमें ल्यूपस के मरीज भी शामिल हैं, अब भी ये समझते हैं कि रोज़ा रखना ही हल है। मुख्तसर मुद्दत में ये एक मुअस्सिर हल महसूस हो सकता है क्योंकि आप अपनी आंतों में मौजूद उन नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक नहीं दे रहे जो सोजिश को बढ़ाते। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप मुसलसल रोज़ा रखते हैं तो मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी लंबाई और वजन दर्ज करके हमारी वेबसाइट पर मौजूद इस BMI कैलकुलेटर के जरिए आसानी से अपना BMI मालूम कर सकते हैं। अगर आपका BMI 18 से कम है और आपको ल्यूपस है तो आप संगीन खतरे में हैं। मैंने ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिनका BMI सिर्फ 13 तक कम था, जो काफ़ी संगीन हालत है। जब आपका BMI कम हो और आपको ल्यूपस हो तो इसका मतलब है आपका जिस्म कैटबुलुक हालत में है, यानी प्रोटीन बनाने के बजाय इसे तोड़ रहा है, जिससे अलामात ज़्यादा शदीद हो जाती है और सेहत याबी का अमल सुस्त हो जाता है। अपनी आंतों की सेहत को बेहतर बनाने और ल्यूपस के दौरे कम करने का असल तरीका खुराक को मुकम्मल तौर पर छोड़ना नहीं है, बल्कि ये इस तरह खाने के बारे में है जो आपके जिस्म के सेहत याब होने के अमल को सहारा दे। बहुत से लोग सही खुराक तलाश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और खाना छोड़ना शुरू कर देते हैं, जो सूरत हाल को मजीद खराब कर देता है। जब ल्यूपस को संभालने के लिए बेहतरीन मैक्रोन्यूट्रिएंट तवाज़ुन मालूम करने की बात आती है तो अपनी तवज्जो चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर मरकूज करें। अगर आपका मकसद सोजिश को कम करना है तो अपनी रोजाना कैलोरीज का तकरीबन 50% सेहतमंद चिकनाइयों से हासिल करें, जबकि बाकी 50% को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के दरमियान बराबर तकसीम करें। यह तनासुब बरसों के तजर्बे और मरीजों के नताइज पर मबनी है, न कि एक ही फार्मूले पर जो सबके लिए हो। अब अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको यह तनासुब इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई कम करें और प्रोटीन बढ़ा दें। इसके बरक्स अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी कैलोरीज में इजाफा करना और कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और प्रोटीन का तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह मेहनत के काबिल है। अपनी ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाकर आप न सिर्फ अपनी तवानाई की सतह को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जिस्म को वो सब कुछ फराहम कर सकते हैं जिसकी इसे लंबे अरसे तक ल्यूपस की अलामात को मुअस्सिर तरीके से संभालने के लिए ज़रूरत है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के तनासुब का ल्यूपस और आंतों की सेहत पर असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और प्रोटीन का तवाज़ुन आपकी आंतों के माइक्रोबायोम में अहम किरदार अदा करता है, जो बराह रास्त इस बात पर असरअंदाज होता है कि आप ल्यूपस को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं। आपकी आंतों में मौजूद जरासीम शुक्र नशास्ता और फाइबर पर परवान चढ़ते हैं, जो सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब यहाँ एक मुश्किल बात आती है। आपकी आंतों में नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस भी होते हैं जो शुक्र, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर को हजम करते हैं, जिससे सोजिश पैदा होती है। सादा शुक्र जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस की अफजाइश को बढ़ाते हैं, जिससे सोजिश में इजाफा और ल्यूपस की अलामात मजीद बिगड़ जाती है। प्रोसेस शुदा नशास्ता जैसा कि सफ़ेद आटे में पाया जाता है भी यही असरात पैदा करता है। दूसरी तरफ पेचीदा रेजिस्टेंट नशास्ता फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग देता है और फाइबर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में ख़ास तौर पर मदद देता है। ये मामला पेचीदा हो सकता है और आप सोच सकते हैं कि क्यों ना कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। यही वो जगह है जहाँ कार्निवर डाइट सामने आती है। ल्यूपस के लिए कार्निवर डाइट मुकम्मल तौर पर गोश्त पर मुश्तमिल होती है, जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। जब इस डाइट पर सख्ती से अमल किया जाए तो कार्निवर डाइट दूध और फाइबर के तमाम ज़राए को ख़त्म कर देती है, जिससे आंतों में ऐसा माहौल बनता है जहां नुकसानदेह बैक्टीरिया को जिंदा रहने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उन्हें खुराक के लिए शुक्र, कार्बोस और फाइबर नहीं मिलता। ये तरीका खास तौर पर इस वक्त मुअस्सिर साबित हो सकता है जब ल्यूपस की शिद्दत बढ़ जाए और सोजिश उरूज पर हो। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है। अगरचे कार्निवर डाइट कलील मुद्दती आराम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन यह हर किसी के लिए तवील मुद्दत तक काबिल अमल नहीं होती। असल पीलियो डाइट, जो बाद में कार्निवर डाइट में तब्दील हुई, ज़्यादातर पौधों पर मबनी थी और कभी कभार गोश्त शामिल किया जाता था, जो इस फाटोन्यूट्रिएंट से भरपूर खुराक के ज़्यादा करीब है जिसकी मैं आम तौर पर सिफारिश करता हूँ। तो अगरचे कार्निवर डाइट सोजिश को कम करने में मदद दे सकती है जब बीमारी की शिद्दत बढ़ जाए, लेकिन सेहतमंद आंतों के माइक्रोबायोम को बरकरार रखने के लिए यह तवील मुद्दती हिकमत अमली के तौर पर बेहतरीन नहीं हो सकती। और मैं इस मौजू पर एक और वीडियो में मज़ीद तफसील से बात कर चुका हूँ, तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें।
कार्निवर डाइट के अलावा भी कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो मखसूस कार्बोहाइड्रेट्स को निकालने पर मरकूज है ताकि सोजिश को कंट्रोल किया जा सके। एक ऑप्शन जिसे कुछ लोग आजमाना चाहते हैं वह स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट। एससीडी का मकसद सोजिश को कम करना है, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल कर जो हजम होने में मुश्किल होते हैं और अक्सर आंतों में खमीर बनते हैं, जिससे बैक्टीरिया की ज्यादती हो जाती है। एससीडी पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे डाइसिक्राइड्स और पॉलीसिक्राइड्स को खत्म कर देती है, जो बैक्टीरिया की ज्यादती और बीमारी के भड़कने में किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो भी तैयार की है जिसमें मैंने एससीडी का मवाजना इस फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट से किया है, जो मैं ल्यूपस के इलाज के लिए तजवीज़ करता हूँ। और मेरे तजर्बे में आंतों के माइक्रोबायोम के मसाइल को हदफी प्रोबायोटिक्स के साथ हल करना, जिनकी मदद मुख्तलिफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स से हो, कहीं ज़्यादा मुअस्सिर है। एससीडी डाइट में दुरुस्तगी की कमी है और यह अक्सर मुस्तकिल नताइज नहीं देती। एक और डाइट जो अक्सर आंतों से मुताल्लिक बीमारियों जैसे ल्यूपस के इलाज के लिए ज़ेर बहस आती है वो है लो फूड मैप डाइट। ये डाइट खास तौर पर कुछ खमीर पजीर कार्बोहाइड्रेट्स को महदूद करने के लिए बनाई गई है जो आंतों में तकलीफ और सोजिश का बाइस बन सकते हैं। आइए मैं अब के लिए इसे आसान अल्फाज में बयान करता हूँ। फूड मैप्स छोटे जंजीर वाले कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर अल्कोहलिज है जो छोटी आंत में सही तरह जज्ब नहीं होते, जिसके नतीजे में खमीर होना और आंतों के मसाइल पैदा होते हैं। इनमें खमीर पजीर ओलिगोसिक्राइड्स शामिल हो सकते हैं जो गंदम, प्याज और लहसुन जैसी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं, डाइसिक्राइड्स जो दूध और दही जैसी लैक्टोज वाली ग़िज़ाओं में होते हैं, और मोनोसिक्राइड्स जो सेब और शहद जैसी फ्रक्टोज से भरपूर ग़िज़ाओं में मिलते हैं। आपको पोलीओलिस भी मिल सकते हैं जो शुगर अल्कोहलिस की शक्ल में कुछ फलों जैसे चेरी और आलू बुखारे में पाए जाते हैं। इस डाइट में एक इलेमिनेशन फेज होता है जो इस वक्त मददगार साबित होता है जब आप ल्यूपस के फ्लेयर में हो, जिसमें तमाम हाई फूड मैप ग़िज़ाएं 4 से 6 हफ्ते के लिए निकाल दी जाती हैं ताकि अलामात में बेहतरी आए और फिर आपके ज़ाती फूड टर्गुर्स की बुनियाद पर दोबारा मुतारफ़ करवाने का मरहला आता है। लेकिन इतनी सारी डॉट्स जो कार्ब्स और फाइबर को महदूद करती हैं, आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सी वाकई सोजिश और आंतों के माइक्रोबायोम के लिए मुअस्सिर है। इनमें से बहुत सी डॉट्स के साथ मसला यह है कि ये बराह रास्त असल वजह को हल नहीं करती, जो कि आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी है। असल में आपके पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करते हैं, जिससे उनकी तादाद में इजाफा और नुकसानदेह बाई प्रोडक्ट्स की पैदावार होती है। ये सूरत हाल ऐसी बीमारियों में आम है जैसे सीबो और कैंडिडा, जिसके नतीजे में हिस्टामिन की सतह बढ़ जाती है, सोजिश पैदा करने वाले साइटोकाइनेस बनते हैं और थकन, पेट फूलना, दिमागी धुंध और सस्ती जैसी अलामात जाहिर होती है, जो ल्यूपस की अलामात है जिन पर मैंने दीगर वीडियोज में बात की है। आपके पास एक खराब आंतों का माइक्रोबायोम होता है, इसके साथ कार्ब्स, चीनी और फाइबर भी शामिल हो जाते हैं जो ल्यूपस की सोजिश का बाइस बनते हैं। अब तक जिन डॉट्स का मैंने जिक्र किया है वो कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी और फाइबर के अज्जा को तो एड्रेस करती है, लेकिन वो असल वजह यानी आंतों के माइक्रोबायोम की तवील मुद्दती सेहत को नहीं देखती। बुनियादी तौर पर ये डॉट्स आर्जी हल हैं जो असल मसले को सिर्फ मुअख्खर करती हैं। और यहीं से मेरा तीसरा नुक्ता आता है कि मिसाली ल्यूपस डाइट को माइक्रोबायोम के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ कार्ब्स से परहेज करना असल मसले यानी आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी को हल नहीं करता। इसका मुअस्सिर तरीके से इंतजाम करने का वाहिद तरीका यह है कि मखसूस फाइटोन्यूट्रिएंट्स और ख़ास प्रोबायोटिक फार्मेशन इस्तेमाल की जाए। एक बेहतरीन फाइटो डाइट बनाने के लिए हिकमत अमली के साथ सोचना और आंतों के काम करने के तरीके को गहराई से समझना ज़रूरी है। यहीं पर माइंड गट्टामोनेट अप्रोच सामने आती है। हम आगाज़ करते हैं आंतों के माइक्रोबायोम को दुरुस्त प्रोबायोटिक्स के साथ दोबारा तरतीब देकर, और ये वो आम प्रोबायोटिक्स नहीं है जो आपको बाजार से मिलते हैं। ये क्लिनिकी तौर पर साबित शुदा है और ख़ास तौर पर आंतों से मुताल्लिक मसाइल के लिए तैयार किए गए हैं। आपको ज़्यादा सी एफयू गिनती मुख्तलिफ अक़साम और रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 मखसूस अक़साम की ज़रूरत है जो आंतों में एक हिफाजती बायोफिल्म बनाती है और नुकसानदेह बैक्टीरिया को काबू में रखती है। उन सेहतमंद कॉलोनीज़ को बरकरार रखने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स कलीदी हैसियत रखते हैं और ये ज़्यादातर पौधों पर मबनी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स ल्यूपस में मुदाफ़ती रद्द अमल को मुतहर्रिक कर सकते हैं, जिससे सोजिश पैदा होती है। मिसाल के तौर पर कुछ पेचीदा प्रोटीन्स बीमारी के भड़कने का बाइस बन सकते हैं, इसलिए उनके इस्तेमाल में एहतियात बरतना दानिशमंदी होगी। ताहम उन ग़िज़ाई तरीक़ों को हद से ज़्यादा अपनाना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर वैगन मुकम्मल तौर पर पौधों पर मबनी ग़िज़ा फ़ायदेमंद महसूस हो सकती है, लेकिन अमूमन ये अफराद के लिए बहुत ज़्यादा सख्त होती है। वैगन डाइट एक पौधों पर मबनी निज़ाम है जिसमें तमाम हैवानी मसनूआत जैसे गोश्त, दूध, अंडे और शहद शामिल नहीं होते, और इसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पौधों पर मबनी ग़िज़ाओं पर तवज्जो दी जाती है। जब ल्यूपस के लिए वैगन डाइट को देखा जाए तो इस डाइट का सबसे बड़ा मसला यह है कि ज़्यादातर लोग काफ़ी मिकदार में प्रोटीन नहीं लेते, जिसके नतीजे में प्रोटेक्लोर की कमी हो जाती है, और ये आपकी आंतों में सोजिश को दूर करने की कोशिश के दौरान एक संजीदा मसला है। आपके जिस्म को अमीनो एसिड्स और प्रोटीन की ज़रूरत होती है और ये आपकी रोज़ाना कैलोरीज़ का तकरीबन 25% हिस्सा होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सी वैगन ग़िज़ाएँ इंतहाई प्रोसेस्ड होती है जिनमें इजाफी अज्जा और नकली गोश्त शामिल होते हैं जो तवील मुद्दती सेहत के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम नहीं करते, और ये तरीका शाज़ व नादिर ही वो नताइज देता है जिनकी मेरे ल्यूपस के मरीज़ तलाश में होते हैं। एक ज़्यादा मुतवाज़िन और पायदार ऑप्शन मेडिटेरेनियन डाइट हो सकती है।
मेडिटेरेनियन डाइट उन रिवायती ग़िज़ाई आदात पर मबनी है जो बहरा रोम के किनारे वाक़ ममालिक में राइज हैं। इसमें मुकम्मल गैर प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं जिनमें पौधों पर मबनी अज्जा, सेहतमंद चिकनाइयाँ और दुबला प्रोटीन तरजीह दी जाती है। मेडिटेरेनियन डाइट की एक कमी यह है कि ये आपकी फाइटोन्यूट्रिएंट की मिकदार को ट्रैक करने का कोई मुस्तकिल तरीका फराहम नहीं करती, ख़ास तौर पर ल्यूपस के मरीजों के लिए। इसके अलावा ये भी निहायत अहम है कि आपकी रोज़ाना कैलोरीज का 50% ओमेगा फीब से आए, जो आंतों के माइक्रोबायोम की सेहत बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। और अगरचे ल्यूपस के लिए मेडिटेरेनियन डाइट में बहुत सी फ़ायदेमंद ग़िज़ाएँ शामिल हैं, लेकिन ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार को ट्रैक करने में बेकायदगी एक मसला बन सकती है। अपने क्लाइंट्स के लिए हम ज़्यादा दुरुस्त तरीका अपनाते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर ग़िज़ाओं पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। हम रोज़ाना कार्बोहाइड्रेट्स, फीट, प्रोटीन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को निहायत बारीकी से ट्रैक करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि डाइट मुकम्मल तौर पर आंतों के माइक्रोबायोम की हिमायत और बेहतरी के लिए मुआविन हो। इस दर्जे की हदफबंदी खुदकार मुदाफ़ती सोजिश को मुअस्सर तरीके से कंट्रोल करने और तवील मुद्दती सेहतयाबी को फ़रोग़ देने के लिए लाजमी है। चौथा तसव्वुर यह है कि ल्यूपस के लिए फूड डायरी रखना और फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है। चौथा अहम नुकता ये समझना है कि ल्यूपस को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट में आपकी ज़ाती ग़िज़ाई हिस्सेसियतों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरे पास ल्यूपस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर मुकम्मल वीडियो मौजूद है जिसमें बताया गया है कि कौन से टेस्ट सबसे ज़्यादा मुअस्सर हैं और उनके नताइज को कैसे समझा जाए। किसी भी डाइट प्लान के लिए यह लाजमी है कि वो ज़ाती ग़िज़ाई नापसंदीदियों, हिस्सेसियतों और एलर्जीज़ को मद्देनज़र रखे। इन मुहर्रिकात को ट्रैक करने का सबसे आसान और मुअस्सर तरीका फूड डायरी रखना है। और मैं जानता हूँ कि यह काम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए ये एक लाजमी कदम है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखने की है कि जब बीमारी की शिद्दत बढ़ जाए तो तकरीबन हर खाना मसला लगने लगता है। ताहम जैसे ही आपकी सेहत बेहतर होना शुरू होती है, अब देखेंगे कि वो ग़िज़ाएँ जो पहले मसला बन रही थी अब आपको बर्दाश्त होने लगती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी फूड सेंसिटिविटीज़ को बाकायदगी से मॉनिटर और अपडेट करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हालत बेहतर होती है हिसासत भी बदल सकती है। बुनियादी तौर पर ल्यूपस के लिए हसासियत जांचने के 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। आप रिवायती स्किन प्रूफ टेस्ट करवा सकते हैं जो कि एक एलर्जी टेस्ट है। आप सीरम आईजी टेस्ट भी करवा सकते हैं जो कि एक और एलर्जी टेस्ट है, लेकिन इसमें आपका खून लिया जाता है। आपके पास सीरम आईजीजी 4 टेस्ट है जो हसासियत के लिए है, और सीरम मेडिएटर रिलीज टेस्ट है जो सबसे नया टेस्ट है और ये भी खानों से हसासियत को चेक करता है। मैं अक्सर ल्यूपस के मरीजों के लिए ये टेस्ट रिव्यू करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि उनके नताइज उनकी खुराक और मजमूई सेहत के लिए क्या मानी रखते हैं। अगर आप ल्यूपस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्ट को गहराई से समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे पास इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो भी मौजूद है। इसमें मैं मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स, उनके फ़ायदे और नुकसानात और टेस्ट करवाने का बेहतरीन वक्त बयान करता हूँ। मिसाल के तौर पर फ्लेयर के दौरान टेस्ट करवाना बेहतर नहीं होता क्योंकि इस वक्त गलत मुस्बत नताइज आने का इम्कान ज़्यादा होता है। जब आपकी हालत ज़्यादा मुस्तहकम हो तो टेस्ट करवाना ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर फराहम करता है कि असल में हसासियत की वजह क्या है। तो आखिरी चंद डाइट्स जिनका मैं जिक्र करूंगा वो उन्हीं हिस्सेसियतों से मुताल्लिक हैं। आइब डाइट ऑटोइम्यून बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है जिसका मकसद सोजिश को कम करना और आंतों की सेहत को बेहतर बनाना है। ये पीरियड डाइट का ज़्यादा सख्त वर्जन है और इसमें उन ग़िज़ाओं को ख़त्म करने पर तवज्जो दी जाती है जो सोजिश और ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। ये डाइट आमतौर पर कई मराहिल में आगे बढ़ती है। सबसे पहले एक इलेमिनेशन फेज़ होता है जिसमें आप वो तमाम ग़िज़ाएँ छोड़ देते हैं जो सोजिश या मुदाफ़ती रद्द अमल का बाइस बन सकती है। इनमें अनाज, दालें, दूध, अंडे, गिरियाँ, बीज और नाइट शेड्स जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इसके बाद दोबारा शामिल करने का मरहला आता है जिसमें आप एक एक करके ये छोड़ी गई ग़िज़ाएँ दोबारा अपनी खुराक में शामिल करते हैं ताकि ये मालूम हो सके कि आपकी अलामात के लिए कौन सी चीज़ें मुहर्रिक बनती हैं और उससे डाइट को हर फ़र्द के लिए ज़ाती नौयत दी जा सकती है। फिर एक मेंटेनेंस फेज़ आता है जिसमें आप अपनी खुराक को बरकरार रखते हैं और मुहर्रिकात से बचते हैं, जबकि ग़िज़ाइयत से भरपूर और सोजिश कम करने वाली ग़िज़ाओं पर तवज्जो देते हैं। यही बात कम हिस्टामे वाली डाइट के लिए भी दुरुस्त है। मैं इसका यहाँ जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये अक्सर सोजिश से मुताल्लिक बातचीत में शामिल हो जाती है और उसका मकसद ये है कि आप इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें जो आमतौर पर हिस्टामे को मुतहर्रिक करती है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आंतों का माइक्रोबायोम जिस्म में हिस्टामे पैदा करने वाला सबसे बड़ा ज़रिया है, इसलिए बैक्टीरिया, कैंडिडा और जैसी चीज़ों को भी हल करना ज़रूरी है। कम हिस्टामे वाली डाइट ज़्यादातर वक्त आम मुहर्रिक ग़िज़ाओं से बचने की कोशिश में गुजारती है, लेकिन ये आंतों के माइक्रोबायोम के पहलू को हल नहीं करती और ना ही ये हर फ़र्द के लिए मखसूस है क्योंकि हर शख्स के मुहर्रिकात मुख्तलिफ होते हैं। मेरे पास कई वीडियोज़ हैं जिनमें मैं फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट का मवाजना इनफरादी डाइट से करता हूँ जिनका मैंने जिक्र किया है, तो नीचे दी गई तफसील में उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें क्योंकि मैं इनमें से कुछ डाइट्स और उनकी नाकामी की वजूहात और आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस पर गहराई से बात करता हूँ। कम हिस्टामे वाली डाइट के अहम निकात में शामिल है कि ज़्यादा हिस्टामे वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए, जैसे कि पुराना पनीर, खमीर शुदा ग़िज़ाएँ, प्रोसेस्ड गोश्त, अल्कोहल, सिरका, कुछ मछलियाँ, और हिस्टामे लिब्रिचस से भी बचा जाए। हिस्टामे लिब्रिचस वो ग़िज़ाएँ हैं जो अपने अंदर मौजूद हिस्टामे को खारिज करती हैं, यानी ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए जो जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा हिस्टामे को खारिज करती हैं, जैसे कि टमाटर, स्ट्रॉबेरी, बैंगन, पालक, एवोकाडो और कुछ गिरियाँ।
और फिर आपको इन ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करना चाहिए जिनमें बायोजेनिक अमाइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि केला, चॉकलेट और कुछ तुष फल। ये हिस्टामिन के टूटने के अमल को रोकते हैं। ठीक है, खुलासा यह है कि एक मिसाली ल्यूपस डाइट के उसूलों में फाटोन्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। मुझे फाटो डाइट पसंद है। ग़िज़ाई ज़रूरियात यानी अपने मिक्रोज़ को पूरा करना, माइक्रोबायोम की मखसूसी और खुराक से हसासियत। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम हर फर्द के लिए इन उसूलों की बुनियाद पर ख़ास मंसूबे तैयार करने में खासा वक्त सिर्फ करते हैं। हम कोचिंग भी फराहम करते हैं ताकि जवाबदेही और अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। यही वजह है कि हम सिर्फ दवाओं पर मबनी तरीकों के मुकाबले में मुसलसल बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। हम लोगों को घर से अपनी खुराक को मुनज़्ज़म करना सिखाते हैं, जिसमें मील प्लान्स, फूड गाइड्स, तरकीबें और ग्रोसरी लिस्टें फराहम की जाती हैं। ये सपोर्ट इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारे क्लाइंट्स कभी भी उलझन में ना पड़ी और वो अपनी हालत को कहीं से भी मुअस्सर तरीके से संभाल सकें। अगर आप ल्यूपस के साथ जिदोजहद कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसी ग़िज़ाएं देखी हैं जो आपकी अलामात को बेहतर अबतर करती है, तो नीचे कमेंट करें। मैं आपके तजर्बात सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, इस सेशन का इख्तिताम यही होता है। ज़रूर मेरे दूसरे वीडियोज़ देखें जिनमें मुख्तलिफ ल्यूपस डाइट्स का फीड ऑफ डाइट से मवाजना किया गया है और देखा गया है कि वो किस तरह एक दूसरे के मुकाबले में है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसे ही मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डॉक्टर चानो दसरी है, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से। देखने का शुक्रिया और अगली बार मुलाकात होगी।